ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ से भी डिस्कशन होगी जी। साडे नाल मौजूद ने फाउंडर एंड CEO ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। सब तो पहला पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सफलता ते रोक लगी है ते आलोचकों ने हवाला दिता है रिमोट कंट्रोल राजनीति का, ते भगवंत मान की लीडरशिप ते भी सवाल चुके गए ने। ये सैटबैक सिर्फ आम आदमी पार्टी लई है या ओपोजिशन पार्टीज लई भी? देखो, पहली गल कि जिहड़ी ओपोजिशन है हाइंडसाइट ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਹਾਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 5000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 50000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਟ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਅਗੇਨ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ, ਇਟਸ ਟੂ अर्ਲੀ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਦੇ ਆਰ ਪਰਫੈਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਊਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਟੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨੌਨ ਐਂਟਿਟੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਉਹ ਅਨਫੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਅਨਸੇਫ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿਰਫ 45% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸ ਕਿਲਡ ਇਨ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਰਾਈਟ? ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ, ਸੈਡ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਰਿਨਾਊਂਡ ਆਰਟਿਸਟ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਫੇਅਰ। ਉਹ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਨਾਊਂਡ ਸਿੰਗਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਲ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਹਿਸ ਸਪੋਰਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਖਿਆਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਮੇਜਰਲੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਿਹੜਾ 5000 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਂਸਸ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਸਨ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਪੋਪੂਲਰ ਸਪੋਰਟ ਅਲੱਗਵਾਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਕੁਡ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਇਟ ਕੈਨ ਬ੍ਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਇਟਸ ਵਰਸਟ ਡੇਜ਼ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੈਸਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਤੁੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਖਿਆਲ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਪੂਲਰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ, ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਟ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਟ। Khalistan is not what they want. They want to stay united with India. That is and that will be the future of Punjab. ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ constantly ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Somehow for everything that has gone wrong in last few decades and especially after farm laws,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੇਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਜਰਨੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ ਕਾਡਰ ਹਜੇ ਲੋਕਲੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਵਾਇਬਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਾਈਟ ਫਿਟ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਹਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਵੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਆਰਸੈਲਫ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਯੂ ਪੁੱਟ ਓਵਰ देयर ਇਟ ਸ਼ੋਡ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਨਨੋਨ ਨੇਮਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ which is defending the honor of the country, which is keeping people of Kashmir safe, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ। ਇਹ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੌਬੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਲੌਬੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਓ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਕੋਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਨਾਓ this is something which is very very risky and unfortunate that has happened. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਡਰਵੇ ਹੈ। 16 new medical colleges in next 5 years, and an increase in allocation for industrial development, and increase in budget for health sector also. ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ ਨੇ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਗਰੋਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਬਰਡਨ ਘਟੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਲੌਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਂਗਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਐਂਗਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ROI ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਵੰਡਰਫੁਲ।
दूजा पार्ट आंदा है एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इंप्रूव करना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिटेल से जाके पता, बिकॉज डेविल इज इन द डिटेल कि पॉलिसी काम करना आसान कर दी है कि मुश्किल कर दी है। हर पॉलिसी दी हेडलाइन एफ होंगी है टू मेक इन्वेस्टमेंट ईजीयर, टाइटल एफ ही होएगा, पर थल्ले ਉਹਦੇ रूल्स की कहते हैं उत्ते डिपेंड करता है कि यह पॉलिसी साडी स्टेट ਲਈ बेनीफिशियल है या नुकसानदायक है, ਅਸੀਂ ਕੀ इंसेंटिव दे रहे हैं। अगेन फंडामेंटली मैं आम आदमी पार्टी ਨੂੰ फिर कहना चाहूँगा पंजाब की गवर्नमेंट ਨੂੰ कि लॉ एंड ऑर्डर ਨੂੰ सही ਕੀਤੇ बिना ਤੁਸੀਂ इन्वेस्टमेंट नहीं लिया सकते, ਤੁਸੀਂ प्लेट ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपॉर्चुनिटी दे दो, पर कोई भी इंप्लॉय कोई भी इन्वेस्टर जिथे लॉ एंड ऑर्डर का खतरा है, जिथे एफो जे रिस्क पैदा हो रहे हैं कि उत्थे इन्वेस्टमेंट आसानी नाल लेना बहुत औखा हो जाता है। सर, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी युवा पीढ़ी को इमरजेंसी के उस काले दौर को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने हमारी डेमोक्रेसी को कुचलने की कोशिश की थी। देखो, हम हिस्ट्री से कोइंसिडेंटली जो मन की बात का दिन था उसी दिन इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, तो प्रॉब्ली इसलिए उस बात को 45 साल बाद दोहराया गया। बट ये एक अच्छा लेसन भी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और कई बार कुछ पॉलिटिशियन अपनी ईगो में अपने आप को सही समझ के उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही देश के लिए सही है, स्टेट के लिए सही है, वो ऐसी पॉलिसीज लाते हैं। और ये तो आप उनकी एक बात मेरे को बिल्कुल ठीक लगी कि ये बहुत ही यूनिक सिचुएशन थी जहां पे एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट को डेमोक्रेटिक तरीके से चेंज कर दिया गया, और ये हमारे देश के लिए बड़ा फॉर्चुनेट रहा। आज इंडिया ही अकेली एक कंसिस्टेंटली ट्रू डेमोक्रेसी है इस पूरे रीजन में। आप पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, आप श्रीलंका को भी पूरी डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, मैं सिंगापुर की भी बात कर लूं वो भी डेमोक्रेसी नहीं है। आप आसपास सारे देश, बर्मा को देख लीजिए, या भूटान तो चलो मोनार्की है, और आप थाईलैंड में देख लीजिए, कहीं पे भी डेमोक्रेसी सही तरीके से अपनी जड़ें नहीं पकड़ पाई अपार्ट फ्रॉम इंडिया। ये हमारे मल्टी कल्चरल जो थॉट प्रोसेस था, जो हमारा इथोस थे, जो हमारे ट्रेडिशनल इथोस थे कि सबके लिए सबकी वॉइस रखने का सबको अधिकार है, उसके कारण हम अपने देश में डेमोक्रेसी बचा पाए। अब इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इसको अफवाहों से बचाने की जरूरत है। अपने इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हम एक जर्नलिज्म जो बेसिकली मीडिया है, इट्स द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी पार्लियामेंट, इनके ऊपर दोबारा विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। आज अनफॉर्चुनेटली एक कैंपेन चल रही है जो हमारे लोगों का हमारी ही डेमोक्रेसी से विश्वास उठाने की कोशिश कर रही है। उसमें फॉरेन फोर्सेस के अलावा इंडिया के पॉलिटिशियन, ओपोजिशन, कई फोर्सेस उसमें लगी हुई हैं। तो ये एक याद दिलाने की जरूरत है कि वी शुड हैव फेथ इन आवर डेमोक्रेसी, वी शुड हैव फेथ इन आवर इंस्टीट्यूशंस। हमें अपने हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हम अपने देश के इतने लोगों के लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं, आज आसपास के हम देखो, हम अपने आप को कंपैरिजन अमेरिका और यूरोप से अभी नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ कि हमारे लोगों की इनकम लेवल क्या है, पर आज अपने आसपास के आप सारे देश देख लीजिए, हम अपने कितने लोगों के लिए कितनी वेलफेयर स्कीम्स ला पा रहे हैं, कितनी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं। और फ्यूचर में आप देखिएगा कि जब हम लॉ एंड ऑर्डर और एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम बना लेंगे तो हमारी ग्रोथ का पेस एक अलग लेवल पे जाएगा। सर, उन्होंने सेंसरशिप रूल्स का इमरजेंसी दौर में एक और वाकया याद करते हुए कहा कि सेंसरशिप रूल्स इतने एक्सट्रीम थे कि जो फेमस सिंगर थे किशोर कुमार, जब उन्होंने सरकार की सराहना करने को मना कर दिया तो उन पे बैन लगा दिया गया था काफ़ी रेडियो स्टेशंस पे। ऐसा सच पे हुआ था सर? देखो, मैं 45 साल का नहीं हूँ जी उसको बता पाना, तो देखो जब इमरजेंसी लगती है इसका मतलब कि काफ़ी आपके राइट्स छीन लिए जाते हैं। और जब माइंडसेट ऐसा है कि भाई इमरजेंसी लगानी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हर चीज का प्रूफ नहीं होता, कोई रिटन लेटर तो निकली नहीं होगी, यहाँ तो कोई रिटन लेटर हो, एनेक्डोटल एविडेंस होते हैं कि भाई बातों में कई बातें निकल के आती हैं, तो अगर प्राइम मिनिस्टर कोट कर रहे हैं तो हम उसको सच माने, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हैरानी करने वाली बात नहीं है। पर मेरे को लगता है कि हमें अब फोकस वापस लाना है उन चीजों पे जो हम स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं। टुडे वी आर, उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने यूथ को साइंस ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होने की बात की, मेरिटोक्रेसी ओरिएंटेड होने की बात करी। मेरे को ये लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है मन की बात में जो हमें लेने चाहिए। इसके अलावा सर, महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करते हैं। देवदत्त जी का कहना है कि ये जो 2/3 कैपेसिटी या 2/3 मेजॉरिटी जो है ये तभी अप्लाई होती है जब मर्जर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है सर 2/3 मेजॉरिटी का? ये है कि जब ये कॉन्सेप्ट लाया गया था कि जब हॉर्स ट्रेडिंग बहुत होती थी हमारी पॉलिटिक्स में, जब हमारी कोलिशन गवर्नमेंट्स बड़ी होती थी कि भाई आपको 2 MP की जरूरत है, आपने सूटकेस केस भी
एक जो 1 करोड़ में सूटकेस में आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे बड़े आपने किस्से सुने होंगे जिन पे पूरी इन्वेस्टिगेशंस हुई। तो कई बार एक एमएलए या एक एमपी से सीट गवर्नमेंट बन सकती है या टूट सकती है। तो ऐसे कई एमपीज अपनी वोट बेचने को तैयार थे। तो उसके लिए कि आप एंटी पार्टी वोट ना कर पाओ, आप अगर दूसरी पार्टी में जा रहे हो तो 2/3 लोग अगर आपके साथ जा रहे हैं, इसका मतलब कि पूरी की पूरी विचारधारा उधर जा रही है। तो इसलिए ये रूल बना था कि अगर आपने किसी और पार्टी को सपोर्ट करना है तो एक बंदा नहीं कर सकता। एक बंदा तो पैसे लेके भी वोट कर सकता है, आप एक एमएलए खरीद लोगे, 2 एमपी खरीद लोगे। पर अगर वाकई ग्रीवियंस है और आप अपना विचार या विचारधारा बदल रहे हो, या आपको लगता है कि जो करंट विचारधारा है उससे आप एग्री नहीं करते, तो 2/3 लोग आपके साथ होने चाहिए। अब शिवसेना के 2/3 एमएलए जो रिबेल जिनको बोला जा रहा है, अब उनको मेन स्ट्रीम बोले या रिबेल बोले, क्योंकि रफली 56 में से 45 लोग तो कह रहे हैं उनके साथ जुड़ गए हुए हैं, शिंदे जी के साथ, और वो शिवसेना के पुराने स्टालवॉट है। अब उनके लॉयर ये कह रहे हैं कि ये जो 2/3 वाला ये मर्जर अगर किसी और पार्टी से जोड़ रहे हैं, पर अभी तो वो हमारे रिबेल बने हुए हैं, हम तो उनको एक्सपेल कर रहे हैं, तो ये तो अब टेक्निकलिटी का सवाल है। मेजर पॉइंट ये है कि शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई है। एक हिस्सा जो है, जो बाल ठाकरे की फैमिली, मतलब उद्धव ठाकरे और उनका बेटा लीड कर रहे हैं, और रिबेल एमएलए का कहना है कि पहली बात, आपने जिस पार्टी के साथ एसोसिएशन की उसकी आइडियोलॉजी हमारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग है। हम इसलिए इनके साथ आपका जो अलायंस है वो अननेचुरल है और अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ बाला साहब ठाकरे एंड शिवसेना है। फिर दूसरी बात आती है, अब वो कह रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो तो एमएलए से मिलते ही नहीं, वो इसको अपनी पर्सनल फीफडम, एक फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे हैं, जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब रिबेल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई 2.5 साल बाद अचानक क्यों याद आ रहा है, क्या इंसेंटिव मिला है। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। अगर हम मान लें कि रिबेल जेन्युइनली इस चीज से परेशान है, क्योंकि 2 साल से तो वहां पे वो कोविड के कारण कोई पॉलिटिक्स या कोई भी मैनिपुलेशंस या कोई भी मैन्यूवरेबिलिटी के चांसेस नहीं थे, और अल्टीमेटली इसके बारे में बातें मीडिया में कुछ ना कुछ आती रहती थी कि एमएलए खुश नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे जी उनसे मिलते ही नहीं है। अब तीसरी बात आती है कि क्या बीजेपी का इसमें रोल है? गारंटेड, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने कुछ तो बोला होगा, उनसे बातचीत हुई होगी। बीजेपी स्टेट्स में जा रहे हैं, अगर वो रुक रहे हैं तो बीजेपी का भी एक रोल होगा। वो भी चाहेंगे कि भाई अगर ये एमएलए हमारे से मिलते हैं तो हम अपनी पार्टी के साथ, जो मैंडेट ओरिजिनली उनको, सबसे बड़ी पार्टी तो वहां पे बीजेपी है। ये तो कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे ने मिलके समहाउ बीजेपी को बाहर करने के लिए वो एक गवर्नमेंट बनाई है। तो ये सारी इसकी रियलिटीज हैं। जो उनके लॉयर देवदत्त जी कह रहे हैं वो एक टेक्निकलिटी है। ऑफ कोर्स मर्जर नहीं हो रहा है, बट द पॉइंट इज कि अब आपको अपनी मेजोरिटी तो प्रूव करनी पड़ेगी। वो ये चाह रहे हैं कि उनके एमएलए को, रिबेल एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। देखो वो तो कोर्ट ही बताएगा कि होंगे कि नहीं होंगे, ताकि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वही कम हो जाए और उनको मेजोरिटी प्रूव करना आसान हो जाए। तो दिस इज मोर और लेस अब ये एक टेक्निकल गेम बन गई हुई है कि लीगली इसको कैसे जीतना है। Sir, Russian President Putin is all set for first international trip after Ukraine invasion. एक तरफ उनकी कड़ी निंदा हो रही है सर G7 में, और ये इंटरनेशनल विजिट, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, जब से उन्होंने इन्वेजन की है यूक्रेन की, उसके बाद से ये उनकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप है जी। और ये सारी कोई मेजर कंट्रीज नहीं है, ये उनकी नॉन लॉयलिस्ट जो उनके ब्लॉक की कंट्रीज है वहां पे जा रहे हैं उनके प्रेसिडेंट के साथ बाइलेटरल ट्रेड। इस वक्त रशिया के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है और रशिया इसको बहुत स्मार्टली मैन्यूवर कर पा रहा है। नेटो ने जो भी उनके ऊपर बैन लगाए थे कि ये यहाँ पे डॉलर में ट्रेडिंग नहीं होगी, उनके ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर जो बैन लगे थे, उस सबको मैन्यूवर करके वो कंट्री टू कंट्री बाइलेटरल करेंसी में डील कर रहे हैं। वो इंडिया के साथ भी कर रहे हैं और वो इन कंट्रीज के साथ भी कर रहे हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं जो उनके ब्लॉक का पार्ट है। ये वही तरह की कंट्रीज है कि जो रशिया बोलेगा उन्होंने वही करना, उनको सिक्योरिटी भी वही प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद वो बेलारूस भी चाहेंगे, विच इज अगेन, जिसको अगेन नेटो ने बैन कर रखा है फॉर सपोर्टिंग रशिया। तो ये इसके अंदर हम बहुत, इट इज जस्ट अबाउट कि मे बी दे विल ट्राई टू फाइंड आउट वेज कि कैसे इन कंट्रीज के थ्रू वो अपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज इनके थ्रू रूट करें ताकि बैन को बाईपास किया जा सके। इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकती है, ये भी एक ऑप्शन देखने वाली है। सेकेंडली, जो नेटो एक्सपेंशन हो रही है उसके अगेंस्ट जो मिलिट्री एक्शन को कैसे और वाइड स्प्रेड करना पड़ा अगर जरूरत पड़ी, तो उसके ऊपर भी ये 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि इकोनॉमिक बैन्स को कैसे बाईपास किया जाए, दूसरा मिलिट्री एक्शन को और कैसे वाइड स्प्रेड किया जा सके। अब तीसरी ये बातें चली रही हैं पिछले कुछ दिनों से कि रशिया आर्टिक ओशन में भी लड़ाई की तैयारी शुरू कर रहा है,
क्योंकि अब जैसे जैसे वहां पे आइस मेल्ट हो रही है, वो बड़ा ही मिनरल रिच, रिसोर्सेज रिच रीजन है, और वो रशिया की नॉर्थ बाउंड्रीज के आसपास है। तो रशिया का उसके ऊपर सर्टन जो राइट्स होते हैं एज पर द इंटरनेशनल लॉ वो है, पर अभी तक उसको बियॉन्ड एनी नेशन रखा गया था। तो अब उसके लिए भी देखो, ये अगेन सारी वेस्टर्न हेजेमोनिक कंट्रीज हैं, इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं, ये रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में बिलीव करती हैं। तब चाहे रशिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे जर्मनी हो, अब उन रिसोर्सेज के लिए नेक्स्ट राउंड ऑफ फाइट्स करेंगे, और ये पूरी दुनिया को कॉन्स्टेंटली, जब तक इनमें से कोई उस पर कब्जा नहीं कर लेता, कॉन्स्टेंटली दुनिया को अनस्टेबल करके रखेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में G7 की भी मीटिंग हो रही है। जी सर, G7 मीटिंग की आपने बात करी, खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया इस मीटिंग के लिए। बिल्कुल इनवाइट किया गया, और वो वहां पहुंच चुके हुए हैं। और देखो, इसका पर्पस ये नहीं है कि वो इंडिया को रशिया से अलग करना चाह रहे होंगे, पर ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो ग्लोबल अनस्टेबिलिटी है और इंडिया का जो क्लाउट है, और ये पहली बार नहीं है कि G7 समिट में इंडिया को इन्वाइट, ये इंडिया की थर्ड इन्विटेशन है। G7 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, कनाडा, फ्रांस, यूएसए, जापान, पहले रशिया भी पार्ट था जब G8 था, तो ये इन डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, ऑफिशियली तो इसका पर्पस ये है, जो हमेशा जैसे बोल रहा था कि चाहे बिजनेस को मुश्किल किया जाए, टाइटल तो यही बनता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का कि हाउ टू मेक बिजनेस इजी जी। तो सो कॉल्ड इसका पर्पस तो यही है कि पूरी दुनिया को कैसे स्टेबल किया जाए और पूरी दुनिया में प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ाई जाए। पर प्रैक्टिकली ये बना था कि जब ऑयल क्राइसिस 1970s में आए थे, तो इन 7 कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जो मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये उनका एक एसोसिएशन है, और ये अपने साथ नॉन मेंबर कंट्रीज को इनवाइट करती हैं, ताकि अगर उनकी इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है उस डिस्कशन में, तो वो भी पार्टिसिपेट कर पाएं और जॉइंटली कुछ पॉलिसीज और डिसीजंस लिए जा सके। सो दैट इज व्हाई आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज इन जर्मनी टू बी पार्ट ऑफ G7 मीट। आखिरी सवाल सर, तालिबान्स अर्जेंट अपील टू वेस्ट आफ्टर डेडलीस्ट अर्थक्वेक रैवेजेस अफगानिस्तान। जो इस्लामिक एमिरेट्स हैं, उनका ये कहना है कि अफगान इज ओनली आस्किंग फॉर बेसिक राइट, दैट इज राइट टू लिव। बेसिकली व्हाट अफगानिस्तान गवर्नमेंट नाउ, तालिबान गवर्नमेंट इज आस्किंग कि जो उनके सेंट्रल बैंक के फंड्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो फ्रीज किए गए थे जब अमेरिका छोड़ के गया था, उनको रिलीज कर दिया जाए, ताकि इस मुश्किल टाइम पे वो अपने लोगों की हेल्प कर पाए। और ऑन सरफेस ये बड़ी ही ह्यूमैनिटेरियन अपील लग रही है, पर मेरे को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड देशों से पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशन को इतने फंड्स रिलीज करोगे, दे कैन एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, वो अपने आप को मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करेंगे और ज्यादातर पैसा करप्शन में ही चला जाएगा। तो कहने को तो वो कह रहे हैं जी हम अपने लोगों के लिए पैसे मांग रहे हैं, पर उन्होंने ऐसा कुछ करना नहीं है, और इन द नेम ऑफ दैट इट इज एन एक्ट अगेंस्ट मुस्लिम्स। आज ये कि पूरी दुनिया मुस्लिम से लड़ रही है, इस प्ली पे वो फंड्स रिलीज करवाने की बात कर रहे हैं कि गिल्टी फील करवा के पूरी दुनिया को। पर मेरे को लगता नहीं है तालिबान के पास वो एडमिनिस्ट्रेटिव नो हाउ है कि वो इन फंड्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए। सेकेंडली, ना ही उनके लोग, दे आर ऑल वॉरलोड्स, प्रॉफिटियर्स, वो इसको अपने प्रॉफिट के लिए अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में बहुत जल्दी मूव कर देंगे, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, वहां पे इंस्टीट्यूट कौन से। अगर आज वहां पे जो भी लीडर है तालिबान का, वो कहता है जी भाई मैं ये सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल रहा हूं, उसको क्वेश्चन कौन करेगा। वहां पे क्या सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे क्या लेजिस्लेशन है, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बंदूक की दम पे तो वो देश चल रहा है। तो ये सारे पैसे आम लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, तो इससे अच्छा कि इन डेंजरस लोगों के पास पैसे पहुंचाने की बजाय अभी वो फ्रीज ही रखे जाए, जब तक एक ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने का वहां पे माहौल नहीं बनता है। और पर एट द सेम टाइम पूरी दुनिया, जो अफगानिस्तान के लोग हैं जहां पे अर्थक्वेक आया है, उनकी जी जान से हेल्प करें। वहां पे दवाइयां, वहां पे जिन जिन चीजों की जरूरत है, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, जैसे इंडिया ने ऑलरेडी हैज एक्सटेंडेड इट्स फुल सपोर्ट टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, वो चीज पूरी दुनिया को करते रहना चाहिए थ्रू यूनाइटेड नेशन, थ्रू रेड क्रॉस एंड अदर ह्यूमैनिटेरियन बॉडीज, rather than doing it through Taliban. So thank you so much for this meaningful discussion, sir. So अगली बार फिर हाजिर होंगे सही खबरों के सही विश्लेषण के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने सुझाव जरूर दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। Do not forget to subscribe to our channel and download our app. Thank you.